Hello students, I welcome you all to my YouTube channel ePolitical Science. Today I am going to discuss strategies how to crack your entrance exams for political science, as well as the areas which you need to focus where from the questions are going to come, and mostly the questions they have been asked, and the books which you need to follow for your preparations. Okay, so let us begin with today's discussion on the strategies for your entrance preparations. So first of all, students, since you all must have done your honors undergraduation 3-year course, and maybe most of you must be from BA program, so it is better that you be thorough with all the papers that you have been studying first year, second year, third year, and mostly the important ones which you need to focus. They are, first of all, political theory. Political theory आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों में पढ़ा है. एक आप अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी पढ़ते हैं और दूसरा आप कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स पढ़ते हैं. तो ये जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी है ये आपको अच्छे से आपका रिवाइज होना चाहिए. एरियाज़ में बेसिकली आपके जो ऑथर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके बुक्स का नाम, कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी, मैच द फॉलोइंग आता है. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पे मैच द फॉलोइंग आता है. ठीक है, कोटेशंस आते हैं, किसने क्या कहा, कब कहा, ईयर ऑल्सो. सो फॉर दैट पॉलिटिकल थियरी यू कैन फॉलो ओपी गौबा, and you can also follow my book, which is available in both the mediums, published by academic publication. So you can get all the contemporary things and ideas, debates, details. So you can, I will give you the link, you can purchase from Amazon. Then a history of political thought, Plato to Marx का सुब्रत मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी की बुक आती है. ये आपको यूपीएससी में भी हेल्प करता है, एमए एंट्रेंस में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल थॉट है प्लेटो से लेकर के मार्क्स तक का जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है कोर, तो उसके आइडियाज़ आपको पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है सबके आइडियाज़. बेसिकली सिंस यू विल बी गेटिंग MCQs क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस. सो 100 क्वेश्चंस में एरिया वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं कि maybe on an approx 25 questions you are getting from political theory, 25 from IGP Indian Government and Politics, 25 from your comparative का कुछ क्वेश्चन होता है, लॉ बेस्ड होते हैं, मैं आगे भी डिस्कस करूँगी इसको. एक्ट से रिलेटेड होता है कुछ क्वेश्चंस, और कुछ कंटेम्प्रेरी भी होते हैं, और कुछ 25 क्वेश्चंस यू कैन कीप फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग यू. तो 20-25 का मार्जिन आप बना के ओवरऑल आपको प्रिपरेशन करना है. तो अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी में इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कर लो और पॉलिटिकल थ्योरी कर लो. फिर ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया आती है, निर्जा गोपाल जयाल एंड प्रताप भानु मेहता. बहुत अच्छी बुक है, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं इसमें, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और एनालिटिकल भी है. But for the objective based you need to focus on the Constitution of India, PM Bakshi. सारा आपका Constitution clear होना चाहिए. Then another very good book is Politics by Andrew Hewitt, which covers all the thing, the political theory part, the IGP part, the comparative part, the public administration part, the public policy part, and many things. So Politics by Andrew Hewitt is a very very good book which I have come across, and which covers too many things which could be used for your UPSC as well as MA entrance exams students. But it is available in English medium, so you Hindi medium students need to find out some alternatives. You can have the book and you can read at least. MCQ की तैयारी तो कर ही सकते हो, कॉन्सेप्ट्स तो आपको हिंदी में इंग्लिश तो पढ़ ही सकते हो समझने के लिए. Then the most important part is political theory NCERT 11th. हम क्या करते हैं, नई नई किताबें ढूंढने लग जाते हैं क्या पढ़ना है, पर जो बेसिक है वो भूल जाते हैं.
बेसिक है एनसीईआरटी 11th में। हमेशा अपने बच्चों को जब भी मैं पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास लेती हूँ, शुरुआत करती हूँ, आई ऑलवेज टेल देम गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स विच आर देयर इन योर सिलेबस, विच वेयर देयर इन योर सिलेबस इन अंडर ग्रेजुएशन। एक आधा चैप्टर को छोड़ के बाकी सारा ही आपका है, उसका थॉरो रीडिंग होनी चाहिए विथ क्लैरिटी। एंड देन 11th एनसीईआरटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एक्सीलेंट बुक एनसीईआरटी। सो अगर आप ये पैटर्न इतना फॉलो कर लेते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से कोई क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाता, आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली यू विल बी एबल टू कवर ऑल द क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एंट्रेंस एग्जाम्स, ओके। देन नेक्स्ट वी मूव टू आईआर पार्ट। अब आईआर में क्या है, आईआर में फॉरेन पॉलिसी पे फोकस नहीं करना है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे इंडिया का रिलेशंस जो है विज़ सारे कंट्रीज़ के साथ और पावर इक्वेशंस, बट यू हैव टू फोकस ऑन द जो थेरीज़ हैं आईआर की, रियलिज़म, न्यूरलिज़म, स्ट्रक्चरलिज़म, मार्क्सिज़म, किसने क्या कहा, कब जो है यूनाइटेड नेशंस के कौन कौन से रेजोल्यूशन साइन हुए, कौन से ईयर में साइन हुए। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्रकाश चंद्रा की बुक आती है, बुक हाइव्स की, दैट यू कैन रेफर। देन इंटरनेशनल रिलेशंस बाय वी एन खन्ना ऑल्सो यू कैन रेफर। ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू ह्यूवुड। एंड्रयू ह्यूवुड के ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत सारे कुछ डिटेल्ड चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, जो हो सकता है कि वी एन खन्ना की बुक में ना मिले आपको, क्योंकि इज़ अ वेरी रिसेंट कंटेम्प्रेरी स्कॉलर। देन अगेन एनसीईआरटी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वो तो आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए करना है, पर क्योंकि 12th एनसीईआरटी है तो 12th एनसीईआरटी का पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें बहुत सारे आपको मूवमेंट्स मिल जाते हैं, पॉपुलर मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी का जो शुरुआती दौर था कैसा था, तो वो सारा कुछ, ठीक है, और क्राइसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वो सारा कुछ है उसमें। देन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स 12th एनसीईआरटी, ठीक है। अगेन यू विल फाइंड द बेसिक ऑफ द ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स, सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो आईआर से क्वेश्चंस स्टूडेंट्स 25 to 30 क्वेश्चंस यू कैन गेट, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑन द वन थीम, ठीक है। डिफरेंट थीम से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देन बुक्स फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट जो है का आधार किसने दिया था। सो ये दैट इज़ गिवन बाय ऑसबॉर्न एंड गैबलर। आपके पास 4 चॉइस होंगे, आपको उसमें से एक चॉइस सेलेक्ट करना है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन डू अ बेटर सिलेक्शन, ओके, आउट ऑफ द चॉइस। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिक बुक आती है रुमकी बासु एंड मोहित भट्टाचार्य की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन की हिंदी में भी अवेलेबल है। पब्लिक पॉलिसी लोक नीति, विद्युत चक्रवर्ती प्रकाश चंद की किताब है ये। एंड देन अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, विद्युत चक्रवर्ती एंड प्रकाश चंद। कुछ न्यू और करंट डायनामिक्स जो हैं, थेरीज जो हैं, वो आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से अगर आप दो भी बुक या एक बुक भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो बहुत सारे एरियाज आपके कवर हो जाते हैं एमसीक्यूज़ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंड देन द अदर एरियाज विच आर नॉट आइडेंटिफाइड बट क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर फ्रॉम दोज थिंग्स, वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अंबेडकर, गांधी के विचार, लोहिया के विचार, कौटिल्य के और भी मतलब जो हैं थिंकर्स, उनके विचार, फॉर एग्जांपल ई.वी. रामास्वामी नाइकर, देन राजा राम मोहन रॉय। तो थोड़ा सा ना उनके जो उनके एसोसिएशन बॉडीज़, जो मॉडर्न इंडिया के कुछ कोर क्वेश्चंस हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो ये कोर चीज़ें आप थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्टिव चीज़ें को तैयारी कर लो। फिर ह्यूमन राइट्स में, ह्यूमन राइट्स के 3 जनरेशंस ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स का यूडीएचआर कितने आर्टिकल हैं उसमें, फिर एनएचआरसी कैसे फंक्शन करता है, बहुत सारे लॉज जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज। तो देर आर मेनी लॉज एंड एक्ट्स विच मेनी टाइम्स दे आर बीइंग आस्क्ड nowadays in MCQs. So for that you can refer to my book which has been recently published again, Your Laws, Your Rights, and now it is in English medium and Hindi medium. Obviously it is going to come very soon, maybe by this month end. ओके, सो उसमें सारा एंटी टेरर लॉ, प्लूरलिज्म और सेक्युलरिज्म, बहुत सारे लॉज जितने भी हैं हमारे यूनिवर्स
ये यूसीसी पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिबेट्स जो है, वुमेन का चाइल्ड एट्रोसिटीज़, देर आर मैनी थिंग्स विच आर covered under this my book on your laws, your rights. Okay, so students, I hope we had a good discussion and area identification from where you have to prepare for your entrance exams. So you please remember that 4 areas, they are very very important. First area is introduction to political theory. Okay, the second one is Indian government and politics, that we say that Indian politics. Third is public administration, and fourth is IR. These are the base core areas. बट मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि 25 क्वेश्चंस इनसे आएंगे, 20 भी आ सकते हैं, कई बार 15 आ जाएं, कई बार 18 आ जाएं. कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो इमर्ज हुए हैं उससे भी एक आधा क्वेश्चन आ सकते हैं ना. आपको मैंने बताया कि जो लॉ वाला एरिया इमर्जिंग है, जिसमें इन्वायरमेंटल लॉ और NHRC ह्यूमन राइट्स, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं कंटेम्प्रेरी. सो जो कोई न्यू बुक आया है, किसका है, कब पब्लिश हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको समझना है. और अगर आप इतना समझ लेते हैं तो MCQ का आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, एंड यू वुड बी क्लियरिंग योर एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ MA. एंड दीज आर द जो चीज़ें मैंने डिस्कस की दिल्ली यूनिवर्सिटी का है. I will be coming more on these things, more questions coming up to you, more questions and many things, maybe some other entrance also of some other university if I have. So students, if you have any doubts, any questions for whatever I have discussed, so please write to me. And if you like my program, please do give your comments, your feedback, and like my program and share with your friends. Okay, and do subscribe my channel. Thank you. God bless you.